students, welcome to DA Academy and you are watching my channel on YouTube. So this is Dheeraj Arora and we are going to start our first chapter of class 12 electrostatics. Electrostatics में हम पढ़ेंगे different kind of charges. सबसे पहले हम उसमें electrostatics, static stands for the charges which are at rest. However, we will be dealing with other kind of charges also. जो charges motion में है उन charges को हम पढ़ेंगे आपके अगले chapters में. So सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि charge होता क्या है. So charge, it is the property of matter that cause it to experience a force when placed near electrically charged object. So this is the charge. So charges are of two types. Charges are of two types. One is positive charge, the other is negative charge. और चार्ज को हम डिनोट करते हैं Q से, कैपिटल Q और स्मॉल q. चार्ज को हम डिनोट करते हैं Q से और SI यूनिट ऑफ चार्ज इज SI यूनिट ऑफ चार्ज is coulomb, which is denoted by the letter C. Next we move on to properties of charges. First property मेरी कहती है कि positive charges or negative charges, that means like charges they repel each other, whereas positive negative or negative positive charges they that is unlike charges they attract each other. And then I have third property which says that charge always come with mass. How? Mass changes with speed of a body. How that is? 11th में आप लोगों ने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा हुआ है that m equal to m naught upon 1 minus v square minus c square under the root, where m naught is your rest mass, and c is here speed of light and v is the speed of the object. Speed of light बहुत ज़्यादा होती है as compared to the speed of the body. So इसलिए 1 minus something will be less, so that mass will also be reduced. So in this case mass changes with speed of a body. Next point पे अब हम चलते हैं conservation of charges. Conservation of charges जैसे आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. किसी से भी अगर मैं पूछूंगा what is conservation of charge, तो he or she will say that charge can neither be created nor be destroyed. Yes, so conservation of charge में हम पढ़ते हैं conservation of charge says that total charge remains the same of an isolated system. Total charge
remains the same of an isolated system, ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी है? ये प्रॉपर्टी नंबर हो गई मेरी 5। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे हम चलते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में हम पढ़ेंगे दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बुलाता हूं कि यस यू स्टूडेंट यू कम हेयर, तो आप क्या करोगे? आप मेरे पास आओगे। ऐसे तो नहीं ना कि आप मेरे पास फ्रैक्शंस में आ जाओ, पहले आपका सिर आ जाए फिर आपकी बाजू आ जाए, इस तरह से तो नहीं होने वाला ना। व्हेन आई विल कॉल यू, यू विल कम टू मी एंड सो दिस इज द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। जो चार्ज जो है वो पूरा का पूरा ही आता है, फ्रैक्शंस में नहीं आता। सो दैट मीन्स here Q is equal to plus minus NE, where Q is the charge, N is the integer, and E is the charge on electron, which is equal to 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb, which is equal to, इसको अगर इंग्लिश में लिखना चाहें हम तो लिख सकते हैं चार्ज is available only in integral multiple of charge. So this will be the definition, that charge is available only in integral multiple of charge, that is Q is equal to plus minus NE। यहाँ पे n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, n could be +1 -1 and +2 -2 and so on. So similarly this is the integer, n is the integer here, where Q is the charge. Now our next topic is ways to charge a body. Ways to charge a body। सबसे पहला वे है, उसमें आ जाता है हमारे पास बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन। कंडक्शन का मतलब बाय टचिंग, छूकर मेरे को एक बॉडी को चार्ज करना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहता हूँ मेरे पास एक बॉडी है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और एक दूसरी बॉडी है वो भी सेम साइज सेम शेप की है। दिस इज नेगेटिवली चार्ज बॉडी एंड दिस इज no charge. So how we can charge it? जब ये बॉडीज दोनों आपस में बैठेंगी तो क्या होगा? कंडक्शन की वजह से, टचिंग की वजह से एक बॉडी, इस बॉडी का चार्ज जो है इस बॉडी में ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा, जिससे इस बॉडी में भी चार्ज हो जाएगा और इस बॉडी में भी चार्ज हो जाएगा। इस तरफ 6 नेगेटिव चार्जेस से
और इस तरफ कंडक्शन की वजह से 3 यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो गए, 3 यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो गए, तो इक्वल नेगेटिव चार्जेस हो गए। दैट मीन्स से यहाँ पे चार्ज Q था, आफ्टर कंडक्शन यहाँ पे चार्ज Q/2 हो गया और यहाँ पे भी चार्ज मेरा क्या हो गया, Q/2 हो गया। लेकिन इसके लिए एक कंडीशन हमेशा रहती है कि दोनों बॉडीज का साइज शेप सेम रहना एंड मास शुड बी सेम, कॉन्फ़िगरेशन उसकी सेम रहनी चाहिए यहाँ पे। दिस इज बाय फर्स्ट विच इज चार्जिंग बाय कंडक्शन। सो माय नेक्स्ट वे टू चार्ज ए बॉडी इज चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन में क्या होता है कि अगर दो बॉडीज, पहले तो चार्जिंग बाय कंडक्शन में क्या कर रहा है, दो बॉडीज टच कर रहे हैं एक दूसरे को, राइट। लेकिन इसमें क्या होगा, दो बॉडीज दूर रहेंगी। कैसे? इस तरह से, विदाउट टचिंग। फॉर एग्जांपल इसमें मेरे पास है चार्जेस, नेगेटिव चार्ज बॉडी है, यहाँ पे मैंने एक और बॉडी रख दी जो कि बॉडी A है, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव चार्ज सारा पॉजिटिव चार्ज जो है इस तरफ आ जाएगा और नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, इस तरफ आ जाएगा। और मैं इसके साथ एक बॉडी और रख देता हूँ। ये न्यूट्रल बॉडी की वजह से ये सारा नेगेटिव चार्ज अपनी ओर खींच लेगी, ये वाली बॉडी जो है, बॉडी B, एंड इट विल लुक लाइक समथिंग लाइक दिस। नेगेटिव चार्ज सारा यहाँ पे, A चार्ज के ऊपर सारा पॉजिटिव चार्ज, और B बॉडी पे, दिस इज माई बॉडी A, दिस इज माई बॉडी B, एंड इसके ऊपर मेरे पास सारा नेगेटिव चार्ज। दिस इज ऑल्सो यू कैन से दिस इज ऑल्सो डन इन अर्थिंग एज वेल। अर्थिंग और ग्राउंडिंग, यू आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ दिस टर्म। उसमें हम क्या करते हैं, उसमें इस B बॉडी की बजाय मैं क्या करूँगा, इसको अर्थ कर दूंगा इस तरह से, और जो सारा का सारा ये नेगेटिव चार्ज है वो सारा क्या चला जाएगा, वो अर्थ में चला जाएगा। इस तरह से अर्थिंग की प्रोसेस में क्या होता है, शेयरिंग ऑफ चार्ज विद अर्थ। बिकॉज अर्थ तो हमारे यहाँ बहुत बड़ी प्लेनेट है, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, बहुत बड़ा चार्ज अर्थ कैन टेक इन, राइट। So this was the phenomena of charging a body by induction. Charging by friction, जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है कि फ्रिक्शन करना है, फ्रिक्शन। और this is my third, so charging by friction. So friction में क्या होना है, friction means by rubbing, बाय रबिंग। जैसे सपोज विंटर्स है और मेरे को क्या हो रहा है, ठंड लग रही है, देन व्हाट आई डू, आई रब माई हैंड विद ईच अदर। सो व्हाट हैपन्स एट दैट मोमेंट, माई हैंड्स गेट वार्म। दैट मीन्स थर्मल एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड, राइट। सो ये थर्मल एनर्जी क्यों प्रोड्यूस हो रही है, बिकॉज ऑफ एक्सचेंज ऑफ चार्जेस की वजह से हमारे पास यहाँ पे क्या हो रही है, थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। रबिंग का एक और बहुत अच्छा एग्जांपल है, आप बचपन में ज़रूर सबने किया होगा, कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े करें, राइट, जस्ट लाइक दिस। कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े रखे और अपना स्केल लिया प्लास्टिक वाला, उसको अपने बालों के ऊपर रब करा, और विद द हेल्प ऑफ दैट स्केल व्हाट यू डिड, यू स्टार्ट पिकिंग इट अप। देन व्हाट हैपन्स, कुछ एक जो कागज़ के टुकड़े थे ये इसको स्केल को स्टिक होना शुरू हो गए, राइट। यहाँ पे मेरे कागज़ के टुकड़े पड़ने हैं और ये स्टिक होना शुरू हो गए। वाई? बिकॉज एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है और एक बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। कौन सी बॉडी पॉजिटिवली चार्ज और कौन सी बॉडी नेगेटिव चार्ज, दैट विल टॉक अबाउट लेटर ऑन।
So right now here what is happening, sharing of charges, and because of sharing of charges एक बॉडी मेरी पॉजिटिव चार्ज हो जाती है और एक बॉडी मेरी क्या हो जाती है, नेगेटिव चार्ज होती है. दिस इज द वे विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन आई एम गोइंग टू चार्ज अ बॉडी. सो दिस वाज द इवेंट. Yes, now our next topic is Coulomb's law. हमारे पास Coulomb's law क्या कहता है कि अगर मेरे पास दो पॉइंट चार्जेस हैं, मैं दोनों के दोनों पॉजिटिव चार्जेस ले लेता हूं और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस r है, तो Coulomb's law कहता है, it states that one force between the two charges is directly proportional to product of the charges and inversely proportional to the square of distance between them. It is just like gravitational force. It acts along line joining the charges. Then force also depends upon medium. Force depends upon medium. ये नोट कर लो जल्दी से, फिर हम आगे चलें. इसका मैथमेटिकल पोर्शन करते हैं फिर. यस, या आप इसको पॉज भी कर सकते हो वीडियो को, सो दैट यू कैन राइट इट डाउन. नेक्स्ट वी मूव ऑन टू, जैसे हमने कहा है अभी, इसका मैथमेटिकल फॉर्म लेते हैं. जैसे अब ये दो मेरे पास टेस्ट चार्जेस हैं, तो दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं. अब ये दोनों क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे के ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे. ये इस तरफ से, दिस इज माई चार्ज नंबर 1 एंड दिस इज माई चार्ज नंबर 2. इसके ऊपर एक फोर्स लगेगी 2-1, इसके ऊपर फोर्स लगेगी फोर्स F1 के ऊपर ड्यू टू चार्ज 2, एंड इसके ऊपर फोर्स 2 के ऊपर फोर्स लगी बिकॉज ऑफ चार्ज 1. एंड एज मैथमेटिकली ऑल्सो यू कैन राइट इट डाउन. मैथमेटिकली F is proportional to Q1, Q2. F is inversely proportional to 1 by r square. इसको दोनों को हम क्या करते हैं, कंबाइन कर देते हैं. कंबाइनिंग 1 and 2, so it becomes F proportional to Q1, Q2 upon r square, or F equal to K Q1 Q2 upon r square, where क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. electrostatic force constant, and which is equal to
1 by 4 pi epsilon naught, where here is epsilon naught. What is the epsilon naught here? Epsilon naught is the permittivity of free space epsilon naught is the permittivity of free space और जिसकी वैल्यू है, सो दिस विल बी दी यूनिट ऑफ permittivity of free space. Next we move on to Coulomb's law in vector form. Coulomb's law in vector form. उसके लिए हम ले लेते हैं, दिस इज माई फर्स्ट चार्ज, दिस इज माई सेकेंड चार्ज. जब चार्ज यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो इट सेज R1 R2 माइनस R1 ले लेते हैं इसको. और जब चार्ज ऐसे जाएगा, बिकॉज इसको मैं R2 मान लेता हूँ, इसको मैं R1 मान लेता हूँ, फाइनल माइनस इनिशियल. जब ऐसे जाएगा तो ये फाइनल हो जाएगा. दिस विल बी R1 माइनस R2 वेक्टर. सो और बीच का डिस्टेंस हम मॉड ले लेते हैं, मॉड R. F12 क्या है मेरा? फोर्स ऑन वन ड्यू टू 2. फोर्स ऑन वन मतलब फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज, that means this charge, force on Q1 and say this is my Q2. So this is F12 will be equal to K Q1 Q2 upon R mod into R1 minus R2, say this is cap, and this is equal to K Q1 Q2 अपॉन R mod. एंड मेरे को पता है कि A कैप किसके बराबर है? दैट इज इक्वल टू A वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ A. सो इसको मैं लिख लेता हूँ R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर अपॉन R1 माइनस R2 मॉड, और इसका स्क्वायर भी आएगा साथ में. So this R mod will be equal to R1 minus R2. So ये वाली वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर देते हैं. So this becomes K Q1 Q2 upon R1 minus R2 whole square into R1 minus R2 vector upon R1 minus R2 mod. So इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है. So that will be cube F12 equal to K Q1 Q2 upon R1 minus R2 क्यूब इंटू R1 माइनस R2 वेक्टर. इसके ऊपर भी वेक्टर आएगा, इसके ऊपर भी वेक्टर आएगा, बिकॉज वी आर डूइंग इट इन वेक्टर फॉर्म. सो क्यूब हो जाएगा ये, एंड दिस विल बी द एक्सप्रेशन फॉर फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2. सिमिलरली I have F21, force on charge 2 due to charge 1. This will be equal to K Q1 Q2 upon R1 minus, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा R2 minus R1 into R2 minus R1
because R1 minus R2 is negative of R2 minus R1, so I will be getting here F12 vector will be equal to minus F21 vector. And this is the Coulomb's law in vector form also. This form as well as this form. So these two forms are in vector form, and also it is agreeing Newton's law. Next we move on to unit of charge. Unit of charge, that is Coulomb, and it is denoted by the symbol capital C. We know that F equal to Q1 Q2 साथ में K भी है यहाँ पे upon R square. If Q1 equal to Q2 equal to 1 and R is also equal to 1, you can say here unit, then F equal to K equal to 9 into 10 raised to power 9 Newton. So here we are going to define 1 Coulomb now. It is the charge that when placed at a distance of 1 meter from another charge of same magnitude in vacuum experience an electric force of repulsion of 9 into 10 raised to power 9 Newton.